Good morning, students. Okay, so we are going to recall the last paragraph that we had read day before yesterday, and then we are going to proceed further with the explanation. Okay, so the last paragraph was, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikel Africa and black singing Diastem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Okay, so now this day was very special to the author. Now the author here is Nelson Mandela. He is telling you his own autobiography, right? So what does he say? He says that this day was very rememberable for me. Why? Because two national anthems were played, and it is very rare, right? Like two national anthems played. आपने कभी देखा ऐसा कोई ओकेजन जहाँ पे दो नेशनल एंथम्स प्ले की जाती हैं, एक ही देश की, वो भी राइट? लेकिन उस टाइम पे उस जगह पे दोनों नेशनल एंथम्स प्ले की गई. एक नेशनल एंथम थी वाइट्स की जो सब लोगों को याद थी क्योंकि वही डेली डेली बोली जाती थी, राइट? उसी को रिसाइट किया जाता था. और एक थी ब्लैक्स की जो कि उस दिन बोली गई और इसीलिए लोगों को वो अच्छे से याद नहीं थी. लेकिन हमारे जो नेल्सन मंडेला थे उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, उनको पूरा विश्वास था कि एक दिन इन सब लोगों को भी हमारी जो ब्लैक्स की नेशनल एंथम है वो ज़रूर याद होगी. ओके, समझ आ गया इतना? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Now in this paragraph, you are going to know about the history of South Africa, how the white government came into domination. Okay, how the white government, the government of the whites, that means the British government, came into power, came into domination. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Okay, now let's understand it. Let's first see the word meanings. Okay, overwhelmed. Overwhelmed means a strong emotion. Okay, strong emotional effect. When you have very strong emotions in your heart, that feeling is called overwhelmed. You are overwhelmed by that emotion, by that feeling. ठीक है, जब कोई ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं ना, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा प्यार आता है उसको देख के, तो you are overwhelmed with that love. Okay. Then is erected. Erected means built, constructed. Erect, E-R-E-C-T. That means build or constructed. बनाना किसी चीज़ को. Then is racial domination. रेशियल डोमिनेशन, रेस मतलब कलर, ओके, या कोई भी जाति ले सकते हैं हम, जैसे वाइट्स वर्सेस ब्लैक, दोनों डिफरेंट रेसेस हैं, है ना. डोमिनेट करना मतलब किसी के ऊपर अपना दबाव बनाना, ठीक है. तो डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन यानी कि एक जाति जब दूसरी जाति के ऊपर अपना दबाव बनाती है उसको हम बोलते हैं रेशियल डोमिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट इज इनह्यूमेन. इनह्यूमेन मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर, दैट इज क्रूअल. Okay, synonym of cruel is brutal. Okay, cruel. Then is overturned. Overturned means to reverse, to change completely, to reverse, change the position. Okay, overturned, change the position completely. Right? Now let's try to understand the paragraph. So now what the author says is, on the day of the inaugural ceremony, the author was remembering the days of the past. Okay. After the national anthems were sung, he was lost into his own thoughts. ठीक है, वो अपने माइंड में सोच रहे हैं. ओके, अब क्या क्या सोच रहे देखते हैं. When this whole system of apartheid emerged, जब ये apartheid का सिस्टम यानी कि racial domination का जो सिस्टम है, रेशियल डोमिनेशन यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? अपार्थाइड को.
ठीक है, वही होती है ना पॉलिसी, सेम है ना। तो वो अपार्थाइड सिस्टम कैसे पावर में आया उस बारे में वो रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में। इट रिजल्टेड इन इनइक्वालिटी, और ये रेशियल डोमिनेशन से हुआ क्या, अपार्थाइड सिस्टम से हुआ क्या, इनइक्वालिटी हुई, ओके, एंड इन्फीरियर ट्रीटमेंट ऑफ डार्क स्किन पीपल, और जो डार्क स्किन पीपल थे, जो ब्लैक्स थे, उनको बुरा ट्रीटमेंट दिया जाने लगा, इन्फीरियर यानी कि बुरा ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको भी हमारी कंट्री में मिले हुए हैं ना, तो उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे, ओके। यानी कि वाइट्स अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाते थे, वो जैसा चाहते थे ब्लैक से वो वैसा ही बर्ताव करते थे। एज अ रिजल्ट, और इससे हुआ क्या, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल एंड इनह्यूमन सोसाइटी वॉज बॉर्न। पूरे वर्ल्ड में आज भी अपार्थाइड सिस्टम को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस को भी बेच दिया जाता था, ठीक है। ब्लैक्स जो होते थे उनको लिटरली सेल किया जाता था, और किस पर्पस से सेल किया जाता था, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था, बॉन्डेड स्लेवरी जिसको हम बोलते हैं, बंधुआ बॉन्डेज, ओके, स्लेवरी, नौकर बना लेना अपना किसी को, ठीक है। तो मतलब आपने किसी आदमी को खरीद लिया और उससे आप जो चाह बर्ताव कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, काम करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनह्यूमन है ना ये ट्रीटमेंट। विल यू कंसिडर दिस ट्रीटमेंट टू बी गुड? कितना इनह्यूमन है कि किसी आदमी से आपने वो जीने का खुशी ले ली, जीने का अधिकार ले लिया, है ना। आप जैसा चाह रहे हो वो वही करेगा, क्यों करेगा, ठीक है। So that is why this type of society was considered to be, remember the words, most brutal and inhumane. Inhumane मतलब जिसमें इंसानियत ही नहीं है, ठीक है, बिना इंसानियत के। This system created an atmosphere of extreme cruelty and injustice for a particular part of the community. और इस सिस्टम ने क्या किया, एक एटमॉस्फेयर बना दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी होने लगी, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होने लगा, किनके खिलाफ, ब्लैक्स के खिलाफ, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कम्युनिटी। और वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कम्युनिटी क्या था, ब्लैक्स। कौन थे, ब्लैक्स। Now when he is in the 8th decade as a man, he along with the countless others have changed this entire system. लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता चली ना, क्या क्या होता था। अब वो दोबारा से प्रेजेंट में आ रहे हैं, ओके। सो नेल्सन मंडेला ही इज थिंकिंग कि उन्होंने, उनकी पार्टी ने, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए जिन्होंने फ्रीडम फाइट की, उन सारे लोगों ने अपने स्ट्रगल के थ्रू क्या किया, इस सिस्टम को चेंज करने में दोज पीपल वर सक्सेसफुल, ओके, चेंज कर पाए ना, तभी तो आज की डेट में नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राइट, ओके। दैट ट्रीट्स, अच्छा ये सिस्टम क्या करता है, क्या सिस्टम में चेंज आया, इट ट्रीट्स ह्यूमंस एज ह्यूमंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर और एज। ये जो लोग हैं ये ह्यूमंस को एज ह्यूमंस ही डील करते हैं, ठीक है, बजाय उनका कलर कोई भी हो, उनकी कास्ट कोई भी हो, उनका जेंडर कोई भी हो, चाहे उनकी एज कोई भी हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, ओके, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो और कोई कलर का हो, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए समान तरीके से राइट्स देना, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ आ गया इतना? That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Okay, so now he recognizes and he appreciates. Recognize करना मतलब पहचानना, ठीक है, acknowledge करना, okay. So now he acknowledges. Acknowledge करना मतलब पहचानना और accept करना. क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं, किनको थैंक्स बोल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स को,
ठीक है, अपने ही लोगों को जिन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए, एंड दे आर नॉट देयर टुगेदर ऑन दिस डे, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, वो सैक्रिफाइस अपनी लाइफ का ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमारी कंट्री के साथ भी सेम हुआ था 1947, इन द ईयर 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट वॉज देयर एनी फ्रीडम फाइटर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ प्रीवियसली टू अटेंड दैट? नो। वही सेम चीज़ को रिकॉल करके सोचो, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल मीन्स difficult or impossible to imagine. You can't imagine anything, okay, that is unimaginable, okay, unimaginable, difficult or impossible to imagine. Then the next word is patriots. Patriots, what do you mean by patriots? Country lovers, patriot, deshbhakt we call in Hindi, right? The people who love their own country like anything, okay. Okay, so this equal and free country was a result of the sacrifices means balidan, sacrifices of countless other men and women who have fought all their lives for this day. Okay, तो ये जो फ्रीडम मिली थी, ये कैसे मिली थी? जब लोगों ने बहुत सारे sacrifices किए थे. The author wishes if he could thank them all, but unfortunately they didn't live to see the result of their courage. अब यहाँ पे ऑथर जो है वो सोच रहे हैं कि काश मैं उन सारे लोगों को थैंक्स बोल पाता, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया, राइट, बट दोज पीपल डोंट एग्जिस्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स, ओके. नेल्सन मंडेला गैदर्ड हिज करेज and power from all these people and thus wishes to make them proud. अब नेल्सन मंडेला ने क्या किया? अपना करेज और अपना पावर को गैदर किया इन्हीं लोगों से, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, and thus wishes to make them proud, ओके. और वो चाहते हैं कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर ये आज होते तो ये कितना प्राउड फील करते ना, कि जो सपना इन्होंने देखा था कितने सालों पहले, आज वो सपना जाके सच हुआ, साकार हुआ, राइट. समझ आ गया? लेट्स प्रोसीड. ओके, सो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. ओके, नाउ ही एक्सप्रेसेस हिज इंटरनल फीलिंग्स इन दिस पैराग्राफ, ठीक है. ये अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से जो लोग थे, जो एक्चुअल में ब्लैक्स थे, उन पे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, उनके मेंटल स्टेट पे क्या क्या फ़र्क पड़ा था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicelas, the Chief Luthils, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time. Now all these names are the names of the freedom fighters who were there in South Africa, okay, or these are the names of the freedom fighters who have lost their lives, okay. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Okay, so now Nelson Mandela compares the people of his country to diamonds. And what quality of diamonds? Purest diamonds. Okay, purest diamonds. Now let's see the word meanings. Apartheid, you already know. The policy of racial discrimination. Then is profound. Profound means very great, intense, गहरा, ठीक है. जैसे it had a profound effect on him, उसके ऊपर इसका profound effect आया. Effect का मतलब असर, ठीक है. Profound मतलब बहुत ही गहरा असर आया, ओके. तो किसी भी चीज़ की डेप्थनेस को दिखाने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. देन इज अनइंटेंडेड. अनइंटेंडेड मीन्स
मेरी इंटेंशन ही नहीं थी ये करने की, दैट मीन्स मैंने प्लान ही नहीं किया था, समझ गए? अनइंटेंडेड मीन्स अनप्लान्ड, ओके। नाउ लेट्स सी, सो द ऑपरेशन पॉलिसी, जो भी ऑपरेशन पॉलिसी थी, व्हाट वाज द ऑपरेशन पॉलिसी? अपार्थाइड, ऑपरेस करना मतलब दबाना, है ना? द ऑपरेशन पॉलिसी स्कार्ड many people and it will take a long time for them to move on. अब ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, इसका वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ. It had a profound effect on the people of the country who were living in South Africa. And which policy? The policy of apartheid. So all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. And to cure this hurt, इस hurt को, hurt मतलब दुख हो गया ना अंदर, ठीक है, घाव हो गया, wound हो गया, तो इस वुंड को भरने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा साल लगेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साल लगेंगे उस दुख से बाहर आने के लिए, ठीक है. इस दुख को हील करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक मेनी ईयर्स, ओके. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, हम पे दूसरे लोगों ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, हमें दबाया गया, उससे क्या हुआ? एक इफ़ेक्ट हुआ, अनइंटेंडेड, अनप्लान्ड इफ़ेक्ट हुआ. और वो इफ़ेक्ट क्या था कि उससे हमारे सामने इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स आए, ओके. ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिखे ना उन्होंने, ओलिवर, वॉल्टर, चीफ, यूसुफ, ब्रैम, रॉबर्ट, ओके. ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे सामने आए, और ये जो लोग थे ये कोई कॉमन लोग नहीं थे. दे हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, बहुत ज़्यादा करेज था इनमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, ठीक है, कुछ भी करने का एक ब्रेवरी थी, ठीक है, कि अगर इनको मरना भी है तो ये मरने से डरेंगे नहीं. एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में सबसे बड़ा फियर क्या होता है? डेथ का. तो इन्होंने क्या कहा? ठीक है, अपने देश के लिए जान देनी है, वी आर रेडी फॉर इट, ओके. सो दैट इज व्हाई ही सेज दैट दीज मेन हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज. विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, समझदारी, विजडम इज समझदारी. एंड जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मीन्स the people who are ready to help anyone, okay, the people who are ready to help anyone, that feeling is called generosity, when you are eager to help anyone, that their like may never be known again. और फिर यहाँ हमारे यहाँ ऑथर क्या कहते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं वो शायद अब हमें कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही दोबारा नहीं आएगी. जब सिचुएशन एडवर्स आती है, एडवर्स मतलब ऑपोजिट, जब सिचुएशन एडवर्स आती है, हमारे खिलाफ आती है, तभी तो हमारी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आती है. यस और नो? तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आई, हमें जो ऑपरेस किया गया, उससे क्या हुआ? हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले थे. समझ आया? Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. और फिर यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि शायद इस तरीके की क्वालिटीज़ को बाहर आने के लिए इस तरीके से दबाना किसी को ज़रूरी है, किसी को ऑपरेस करना ज़रूरी है. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन ज़रूरी था ताकि ये सारी क्वालिटीज़ के लोग बाहर आ सकते. अब नाउ ही सेज माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, मिनरल्स और जेम्स. तो वो क्या कह रहे हैं, मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स एंड जेम्स हैं जो कि सॉइल में या मिट्टी में ही होते हैं ना. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मुझे पता है कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी धन दौलत क्या है, वेल्थ क्या है? क्या है? पीपल, वहाँ के लोग. किसी भी कंट्री की वेल्थ, ओरिजिनल वेल्थ क्या होती है? वहाँ के लोग, ठीक है. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. और ये लोग कैसे हैं? दे आर फाइनर, फाइन मतलब एकदम तराशा हुआ बोलते हैं जैसे, जिसको बहुत अच्छी क्वालिटी का, हैविंग अ गुड क्वालिटी. ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा ये ट्रू हैं, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा ये प्योर हैं. समझ आ गया? नाउ लेट्स प्रोसीड. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he
who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Okay, now let's see the word meanings first. The first word is comrade. Comrade means a colleague, जो साथ में काम करता है, ठीक है, ज़्यादातर आर्मी के लोग यूज़ करते हैं comrades. Then is resilience. Resilience means the ability to deal any kind of problem that you face in your life. Okay, resilience. सहन शक्ति बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि आप में पावर है, आप सह सकते हो और उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. देन इज डिफाइज. डिफाई करना मतलब मना कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मानने से, ओबे करने से मना कर देना, रिफ्यूज टू ओबे. देन इज ट्रायम्फ. ट्रायम्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट, विक्ट्री, जीत, है ना. ओके, सो नाउ नेल्सन मंडेला सेज, पहले वाले पैराग्राफ के कॉन्टिन्यूएशन में ही है कि मैंने इन लोगों से सीखा. कॉमरेड्स. कॉमरेड्स मतलब मैंने इन लोगों से सीखा कि स्ट्रगल जो है वो क्या होता है और करेज जो है वो क्या होता है, बहादुरी किसे कहते हैं. इन लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों के नेम ऊपर लिखे हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स ने, जो लोगों ने जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन लोगों ने बताया. अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि मैन और वीमेन को देखा है रिस्क लेते हुए, ठीक है, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपनी जान को गंवाते हुए, एक थॉट के लिए, एक आइडिया के लिए अपनी जान का भी वो बलिदान देने से पीछे नहीं हटे. तो इसीलिए मैंने उनसे करेज सीखा कि बहादुरी का मतलब क्या होता है ज़िंदगी में. Okay, I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने आदमियों को खड़े होते हुए देखा है जिनको टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उनका जो हमारा रूल था, जैसे ब्रिटिशर्स का जो रूल था, उसको मानने से मना किया कर देते थे, ठीक है. तो उनका क्या था मानना कि हम मर जाएंगे बट हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है. और ये आप अपनी इमेजिनेशन में भी सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा टॉर्चर होता था, राइट. आपने देखा होगा, वीर सावरकर के बारे में सुना है, सोशल साइंस में पढ़ा है, सेल्यूलर जेल के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा. चलो, आपका ये आज का होमवर्क है, ठीक है. You are going to study about cellular jail, which is in Andaman and Nicobar Islands. Okay. Our own freedom fighters who fought for the freedom of our own country, they were kept in those cellular jails. And what kind of treatment did the Britishers give them? You have to find it out. Okay. And who were the people? The airport there is named after Veer Savarkar. ठीक है. तो वीर सावरकर के नाम पे वो एयरपोर्ट का नेम क्यों रखा है उन्होंने. ओके. एंड व्हाट वर द सैक्रिफाइसेस दैट द पीपल लिविंग देयर, दोज फ्रीडम फाइटर्स डिड. ओके. व्हाट वाज द सैक्रिफाइस दैट दे गिव फॉर आवर कंट्री. ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता चलेगा, आप थोड़ा बहुत उससे कनेक्ट कर पाओगे कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला वांट्स टू से टू यू. ठीक है. ओके. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. तो मैंने क्या जाना कि courage जो है, it doesn't mean कि आपके अंदर fear नहीं है, लेकिन fear से victory है, ठीक है. डर के आगे जीत है, वो वाली बात है ना. डर को आप कैसे हराते हो, ठीक है. एक्चुअल में courage वो है, ठीक है. डर से भागना courage नहीं है, डर को हराना courage है, ठीक है. Face that fear, ठीक है. The brave man is not he who does not feel afraid, ठीक है. अब brave आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, but he who conquers that fear. brave एक्चुअल में किसे कहोगे? जो उस fear को हराता है, उसको conquer करता है. conquer करना मतलब हराना. समझ आ गया? Okay. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Okay, so now he talks about two qualities that we have already studied in the poem Fire and Ice. Okay, so he talks about hatred and he talks about love.
Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Okay, and this is the lesson that we need to learn. Okay, क्या सीखना है देखो. Now he says, no, अच्छा, okay, write down the word meanings first, then we will continue. Grimmest. Grim means very serious. Okay, serious. Grim means serious. Glimmer means shine. ग्लिटर यूज करते हो ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो ग्लिटर क्या करता है, ग्लिमर करता है, शाइन करता है, चमकता है. पुश्ड टू आवर लिमिट्स मीन्स बहुत ज़्यादा हम पे क्या किया जाता था, दबाव डाला जाता था. ओके, और प्रेस किया जाता था हमें. रीअश्योर करना मतलब सांत्वना देना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. ठीक है, रीअश्योर करना मीन्स say or do something to remove the doubts, कि अपने माइंड में डाउट मत रखो. yes, you are going to do that. okay, now let's see. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. now he says कि कोई भी पैदा नहीं होता नफरत करने के लिए. ठीक है, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है क्या वो किसी से नफरत करता है? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, या उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसका रिलीजन क्या है. एक छोटे से बच्चे को पता होता है क्या? तो छोटा सा बच्चे का मेरा आपसे बोलने का ये मतलब है कि छोटा बच्चा जो है वो डायरेक्टली नेचर से आया है, तो नेचर तो उसको ये सब सिखा के नहीं भेजती ना. दिस इज द पॉइंट दैट ही वांट्स टू स्ट्रेस. ओके, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Okay, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को हेट करना आना चाहिए. ठीक है, ऐसा लोग सिखाते हैं ना. आगे सुनो क्या कह रहे हैं. और अगर वो हेट करना जान सकते हैं, हेट करना वो सीख सकते हैं, तो प्यार करना तो वो इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार करना हमें सीधा नेचर से वो क्वालिटी मिली है ना. एक मदर अपने बच्चे को अनकंडीशनली लव करती है. यस और नो? बिना किसी कंडीशन के. ऐसा नहीं होता ना कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये करेगा तो मैं उससे प्यार करूंगी. छोटा बच्चा उसके लिए क्या करेगा? न्यूबॉर्न बेबी अपनी मदर के लिए कुछ कर सकता है? तो दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव. ओके, और लव जो है वो अनकंडीशनल ही होता है. अगर आप ये सोचो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे लिए ये करेगा तो मैं इसको प्यार करूँगी, नहीं तो मैं इसे नहीं जानती. या ये सेम चीज़ आप अपने घर में भी अप्लाई करो. अगर मेरे फादर मेरे लिए ये लाएंगे, मेरे को नई बाइक लेके देंगे तो मैं उनको प्यार करूँगा, नहीं तो वो मेरे पापा ही नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, है ना. दिस इज कंडीशनल लव. इफ दैट पर्सन डज समथिंग फॉर यू, यू आर गोइंग टू पे इट बैक, अदरवाइज you are not going to love. Okay, so now he talks of unconditional love, okay, which nature has taught us, right? Even in the grimmest times in prison, okay, here the word grimmest means very serious, sad time. तो प्रिजन में जब हम सैड टाइम में भी होते थे तो हमारे जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स मतलब मेरे जो साथी थे, ठीक है, मेरे साथियों को और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. हमें हमारी लिमिट से पुश किया जाता था, यानी कि जितना हम सह सकते हैं उससे डबल हमारे ऊपर टॉर्चर होता था. ओके, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. लेकिन उस टाइम पे भी जो गार्ड्स होते थे, गार्ड्स तो हो सकता है इन्हीं की कंट्री के भी हो, है ना, साउथ अफ्रीका के भी हो. जैसे हमारी कंट्री में भी इंडियंस जो थे वो पुलिस में थे उस टाइम पे भी, जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे. तो उस टाइम पे ही सेज कि मुझे जो गार्ड्स होते थे जेल में, उनमें एक टाइम पे एक झलक दिखती थी इंसानियत की. जैसे हो सकता है जब वो हमें पीटते थे, जब ब्रिटिशर्स हमें पीटते थे, जब हमें टॉर्चर किया जाता था, तो एक बार वो देख लेते थे कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनको तरस आ जाता था, और वही जो उनके मुंह पे एक्सप्रेशन होता था वही काफ़ी होता था मुझे ड्राइव करने के लिए, मुझे रीअश्योर करने के लिए कि नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलेगा. अगर इनके अंदर इंसानियत के एक मोमेंट के लिए भी अगर इनके फेस पे इंसानियत का एक्सप्रेशन आ सकता है, तो दैट मीन्स we can achieve what we have desired, that is the freedom of our own country. Okay, man's goodness is a flame that can be hidden
बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ओके, जो आदमी है उसकी जो गुडनेस है वो एक तरीके से एक फ्लेम है, एक जोत है। फ्लेम इज जोत, ठीक है, एक जोत है जिसको छुपाया तो जा सकता है बट उसको कभी एक्सटिंग्विश, बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि हम सब के अंदर गुडनेस है, ओके, जो हमारे अंदर है और हमें उसको कितना बड़ा बनाना है, कितना उसमें ऑयल डालना है वो हमारे ऊपर है, कब तक उसको जलाना है वो हमारे ऊपर है। समझ आ गया? ओके, सो द रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। फाइन।